Good morning, dear student. Welcome to our online class. So, today we will continue chapter number 5, Computer Paint. Okay, so we already learned this tools: line tool, polygon tool, and text tool. So, other tools are here. So, today I will teach you that other tools. Page number 32, using select tool. If I want to use any if I want to select any drawing from paint program, so that time we have to select the select tool. If I want to select any part of drawing, then I have to use select tool. This tool is used to select the part of drawing. To use this tool, we have following steps. Page number 33. Step number 1. Draw any drawing. First, what we have to do? Firstly, we have to draw any drawing, whatever you want, right? Then, step number 2. Click on select option from the image group. There is one image group is there. Okay. From there, you have to select that option. Step 3. Click outside the area we want to select and drag the mouse pointer over the area of the drawing. The drawing will get selected. So what we have to do? We have to drag the mouse pointer and select that area which you want, and after the drawing will get selected. Okay. So using select tool means if you want to select any drawing from paint program, that time you have to use select tool. Okay, the next, using copy paste option. You already know, maybe you already know copy paste options. If you want to copy any number, text, drawing, then firstly you will copy that one, and if you want to paste also in another place, that time you can paste also. So sometimes we need to copy the part of an image to another location. Copy and paste options are very helpful to do it. अगर मुझे एक कोई ड्राइंग को दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, कॉपी करना है, तो मैं कौन सा ऑप्शंस का यूज़ करूँगी? कॉपी पेस्ट ऑप्शंस. Steps to place a part of a picture to another location are: step number 1, with the help of select tool, select the part of the drawing we want to copy. अगर मुझे मेरे पास कोई इमेज है, अगर मुझे उसको कॉपी करके किसी और जगह पे उसको लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगी? फर्स्ट आपको सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करना है, फिर आपको जिस भी ड्राइंग के पार्ट को पेस्ट करना है अनदर जगह पे, उसे आप सेलेक्ट कर दीजिए उस पार्ट को. ओके. देन आफ्टर स्टेप नंबर 2, ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन. आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलेगा. ओके. क्लिपबोर्ड है ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन. देयर इज पेस्ट, कट एंड कॉपी. तो आपको किस पे करना है? क्लिक कॉपी वाले ऑप्शन पे. ओके. स्टेप नंबर 3, टू पेस्ट इट सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. ओके. फर्स्ट अपन क्या करेंगे? जैसे इस पार्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया है, ये वाला. ओके. So first we have to select this drawing. Okay. After that, I want to paste this area of drawing to another place. So so firstly I will copy this one. I will select this drawing, this area. After that I will copy this one, and after that I will just move to another place, and after that I will click on paste option. That drawing will be pasted on another page, right? Like I just in this picture, this selected area is this one, and copy it. After that paste it on another page. That
like this it will be came. Okay. Step number 4. Now place the mouse pointer on the pasted image. Step number 5. Click and drag it to desired place. Okay. I hope you will understood this one. कॉपी पेस्ट बहुत सिंपल है. अगर आप कोई भी मैसेज को कॉपी करते हैं और कॉपी करके किसी अनदर पर्सन को अगर आपको सेंड करना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल कॉपी दैट टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट यू विल पेस्ट टू another person. First you will paste and after that you will send that message. Okay. Then next, page number 34. More tools. Some more tools are there that I will teach you. First, the rectangular selection tool. If you want to draw rectangular shape in drawing, that time you will use this one. The rectangular selection tool is used to select a rectangular shaped area of image. The selected area can be moved, copied or resized as required. आपको पेंट में एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल मिलेगा. उससे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई ड्रॉ बनाया है उसको आप रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट करके आप उसको मूव भी कर सकते हैं अनदर प्लेस पे. आप उसको कॉपी भी कर सकते हो और आप उससे रीसाइज भी कर सकते हो. रीसाइज का मतलब आप उसकी साइज़ बढ़ा भी सकते हो और छोटी भी कर सकते हो. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, द मैग्नीफायर टूल. द मैग्नीफायर टूल कैन बी क्लिक्ड ओवर एन एरिया of which we want a closer view. Left clicks give a closer view, right clicks give a zoom out. So मैग्नीफायर आपने देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास. उससे क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम एकदम जूम करके देख सकते हैं. ओके. अगर मैंने कोई ड्रॉ बनाया है, अगर आप मुझे उसको जूम करके देखना है तो मैं क्या करूँगी, मैग्नीफायर टूल का यूज़ करूँगी. अगर मैं उसको माउस को लेफ़्ट क्लिक करती हूँ तो उसका क्लोज़र व्यू आ जाएगा. ओके. देन आफ्टर वेन एवर आई विल क्लिक राइट क्लिक तो वो क्या करेगा, बहुत जूम आउट हो जाएगा. मीन्स अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करती हूँ माउस का बटन तो मुझे एकदम से जूम दिखेगा और अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ तो वापस जूम आउट हो जाएगा. जूम आउट का मतलब वापस नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा. After that, the color picker tool. The color picker tool is used to sample and match any color in our picture. It is especially useful when colors in the picture are different from those on the palette. अगर पेंट, देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. पेंट प्रोग्राम में ये जो कलर बॉक्स होता है, ओके, तो अगर मुझे इसमें से जो मुझे कलर चाहिए वो इसमें अवेलेबल नहीं है तो मैं कौन सा टूल यूज़ करूँगी, द कलर पिकर टूल. इससे क्या होता है, अगर आप जो भी आपको कलर चाहिए वो आप इसमें से सिलेक्ट करके ले सकते हैं. तो ये यूजुअली किस लिए होता है यूज़ को, अगर आपको कलर बॉक्स में कलर अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको जो कलर चाहिए वो आप इस टूल से आप सिलेक्ट कर सकते हो. Then after that, rotate or flip tool. Rotate or flip tool is used to rotate the whole picture or selected part. Rotate और flip tool का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी ड्राइंग को या फिर सिलेक्टेड पार्ट को रोटेट करना है तो वो इसलिए काम आता है रोटेट करने के लिए. नेक्स्ट वन, सेविंग अ फाइल. जैसे कि मैंने पूरा ड्राइंग मैंने बना ली है. ओके. तो अब उस फाइल को मुझे सेव करना है तो वो मैं कैसे करूँगी. टू सेव आवर ड्राइंग एज अ फाइल वी नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स. फर्स्ट, क्लिक ऑन पेंट बटन. ओके. पहले हम क्या करेंगे, पेंट बटन पे क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन. ओके. After that, type the file name in the file of name box and last one, click on the save button. हमें क्या करना है, पेंट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, उसके अंदर हम हमारी फाइल का नेम टाइप करेंगे और फिर उसे सेव कर देंगे ताकि हमें जब भी इन फ्यूचर अगर हमें वो ड्राइंग देखनी है तो हमको पता होना चाहिए कि वो ड्राइंग कौन से फोल्डर में है और उस फाइल का नाम क्या है. Sometimes we make some changes to the saved file and need to save another picture with changes. So we will use save as option to make
another file. Then after that, page number 35. Last topic, opening a saved file. जैसे कि मैंने एक फ़ाइल जैसे कि फ़ाइल सेव कर दी है और अगर मुझे उसी फाइल को अगर ओपन करना है तो मैं क्या करूँगी, क्लिक ऑन पेंट बटन. फर्स्टली वी हैव टू क्लिक ऑन पेंट बटन. आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन. open option is there. On that you have to click. After that, select the name of the file containing the drawing we wish to open. Click on the open button. So simply इसमें क्या है, अगर मैंने जो पहले फाइल सेव करी थी उसको अगर मुझे ओपन करना है तो मैं क्या करूँगी, पेंट बटन पे मैं क्लिक करूँगी. आफ्टर दैट एक ओपन करके ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी. आफ्टर दैट पूरा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर फोल्डर्स होंगे और फोल्डर्स के अंदर फाइल्स होंगे. तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी फ़ाइल का नेम क्या है, तो वो फाइल को मैं सेलेक्ट करके फिर बाद में ओपन बटन पे क्लिक करूँगी तो मेरी फ़ाइल जो होगी, मेरी ड्राइंग जो भी होगी वो ओपन हो जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सम पॉइंट्स कीप इन माइंड्स आर देयर. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको अपने दिमाग में रखने हैं. अ पेंट प्रोग्राम इज़ अ सॉफ्टवेयर. पेंट प्रोग्राम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय विंडोज़. वो किसने प्रोवाइड किया है, विंडोज़ ने. सेकेंड वन, वी यूज़ टेक्स्ट टूल टू शो अ मैसेज इन पेंट. मुझे टेक्स्ट टूल किस लिए यूज़, अगर मुझे टेक्स्ट टूल किस लिए यूज़ होता है, कोई भी मैसेज को शो करने के लिए पेंट में. टू सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग वी यूज़ सेलेक्ट टूल. इफ़ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ ड्राइंग दैट टाइम आई विल यूज़ सेलेक्ट टूल. नेक्स्ट वन, वी कैन कॉपी द पार्ट ऑफ एन इमेज टू अनदर लोकेशन. हम कोई भी इमेज पेंट में कोई भी इमेज के पार्ट को कॉपी करके हम उसको अनदर लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं. वी कैन सेव अवर ड्राइंग यूजिंग सेव ऑप्शन इन फाइल मेन्यू. हम हमारी इस ड्राइंग को सेव कैसे करेंगे, फाइल मेन्यू में सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. I will teach you practically also after some time, after we completing all chapters. So today I will give you this 2 exercise, okay, and in next class I will give you this question answers. So you already wrote this one in your class computer notebook. Today I will give you this 2 exercise, to that also you have to write in your computer notebook. Thank you.